So, very good morning, the students in this important session. And this is the word section in which I shall discuss about the short answer type questions based on the lesson number 2, the last spring, Flamingo class 12th. इससे पूर्व में बच्चों अपने इस पाठ की समरी हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त की और अब ये आवश्यक हो गया कि इस पर जो है हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे चर्चाएं कर दें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु वाज साहेब, व्हाई डिड हिज फैमिली लीव ढाका एंड कम टू सीमापुरी इन दिल्ली। साहेब was a rag picking boy. He and his family came from Dhaka at Simapuri in Delhi because there were many storms that had blown away their houses and fields, and they had nothing there to feed up. And this was the reason they left Dhaka and came to Simapuri in Delhi in search of their livelihood. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाउ इज रैग पिकिंग डिफरेंट इन मीनिंग फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। किस प्रकार से कूड़ा उठाना बच्चों के लिए और बड़ी उम्र के लोगों के लिए भिन्न है। इन सीमापुरी रैग पिकिंग is the only option for the squatters who came from Bangladesh. For children, it is wrapped WRAPPED. For children, it is wrapped in wonder WONDOR. For children, it is wrapped in wonder and like a gold. While for the adults, it is a mean of survival in Simapuri. In Simapuri, the adults picked up the rags for their livelihood. Question number 3. Why did why did the rag picking boys not wear slippers? जो कूड़ा उठाने वाले बच्चे थे वो चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। आंसर, they did not wear chappals because they were too poor to buy them. Somehow they had rag clothes on their bodies. इसमें और जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द रैग पिकर्स एट सीमापुरी इन दिल्ली। द कंडीशन ऑफ द रैग पिकर एट सीमापुरी in Delhi was very miserable one. They found very hard to a full meal in a day for themselves and their family. It was the condition of the rag pickers at Simapuri in Delhi. नेक्स्ट और पांचवा क्वेश्चन आपका है जो महत्वपूर्ण है, व्हाट वाज साहेब्स फुल नेम, व्हाट इज द आयरनी विथ द मीनिंग ऑफ हिज नेम। साहेब का पूरा नाम क्या है और उसके नाम के साथ क्या व्यंग जुड़ा हुआ है। साहेब्स फुल नेम वाज साहिब आलम, मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, बट being the Lord of Universe, he roams the street
of Simapuri to pick up rags in the street for their living. साहिब का पूरा नाम है साहिब आलम, जिसका अर्थ होता है दुनिया का मालिक। दुनिया का मालिक होते हुए वो सीमापुरी की गलियों में भ्रमण करता है और कूड़ा उठा करके अपनी जीविका पालता है। यही उसके नाम के साथ व्यंग जुड़ा हुआ है। तो ये तो था 5 क्वेश्चन आपके पहले खंड से। अब दूसरे खंड में आते हैं। हु इज मुकेश, व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। मुकेश कौन है इस कहानी में और कौन सी चीज इसके अंदर है जो चूड़ी बनाने वाली समाज में उसे लोगों से भिन्न या अलग करती है। मुकेश इज ए यंग बॉय born in the family of bangle makers. It is the traditional society of Firozabad where maximum number of people are engaged in the work of bangle making in the glass industry. Mukesh thinks of being a motor mechanic and to drive a car, and this idea makes him different from the others in the traditional society of Firozabad. Question number 2. What is Firozabad famous for? What is the auspiciousness of it? फिरोजाबाद किस चीज के लिए प्रसिद्ध है और इस चीज को लेकर के क्या पवित्रता है? तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग and glass industry. Bengal is auspicious in Indian wedding as a suhag for the bride, and it is considered sacred for the bride. Question number 3. What are the hazards in the glass making industry? चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में क्या क्या खतरे हैं? In the glass making industry, the people had to work at high temperature in suffocating atmosphere without proper air, without proper light, where they have the risk of lungs and respiratory disease. And it was not a suitable atmosphere for them, but somehow they work there. Even the children work there to polish the glasses, to weld the parts of the circle of the bangles. And while doing this, they often lose their eyesight before they grow adults. तो जो खतरे थे कांच की उस फैक्ट्री में, वहां पर उनको अत्यधिक तापमान पर काम करना पड़ता था और घुटन भरा वातावरण नहीं था, पर्याप्त घुटन भरा वातावरण था, पर्याप्त रोशनी नहीं थी, पर्याप्त वायु नहीं थी, तो जिससे फेफड़े से संबंधित और श्वास से संबंधित कई बीमारियां होने का खतरा रहता था। इसलिए जो है वहां पर जो छोटे बच्चे कार्य करते थे, पालिश करने की वजह से, चूड़ियों की धूप की वजह से उनकी आंखों की रोशनी अक्सर चली हो जाती थी, इससे पहले कि वे और उम्र में बड़े होते। तो ये वहां पर हैजार्ड्स थे। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, व्हाट टू डिस्टिंक्ट वर्ड डिड द नरेटर सी इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी ऑफ फिरोजाबाद? फिरोजाबाद के उस पारंपरिक समाज में जो कहानीकार हैं उन्होंने दो अलग अलग दुनिया क्या देखी? तो द नरेटर सा टू डिस्टिंक्ट वर्ड. One was caught in the web of poverty of the one was caught in the web of poverty, like the farmers, workers, etc. तो कह रहे कहानीकार ने वहां दो अलग अलग दुनिया देखी। एक ऐसी दुनिया थी जिसमें जो लोग थे वो उस जाल में जकड़े हुए थे और उस ग्रुप में थे
किसान और काम करने वाले मजदूर। एंड द सेकेंड हैंड was the group of the middlemen, sahukar, money lenders, the keepers of law, officers, and the policemen who entrapped these workers and the farmers for a long times। तो दूसरी तरफ किसका ग्रुप था? मध्यवर्गीय लोगों का, जिसमें अधिकारी गण थे, जमींदार थे, साहूकार थे, कानून के हुक्मरान थे और पुलिस वाले थे, जिन्होंने इन छोटे वर्ग के लोगों को अपने जाल में जकड़ रखा था। एंड एक्सप्लॉइटिंग देम, और उनका शोषण कर रहे थे। क्वेश्चन 5 और फाइनल वन है आपका, वाई डिड द वर्कर्स इन फिरोजाबाद नॉट ऑर्गेनाइज इन अ कोऑपरेटिव? फिरोजाबाद के लोग एक समूह में क्यों नहीं इकट्ठा पाते थे? द वर्कर्स इन फिरोजाबाद डिड नॉट ऑर्गेनाइज themselves into cooperative because they had no leader and they were always afraid of being punished by the police sent to jail, imposing a false case against them। तो फिरोजाबाद में जो लोग थे, वर्कर जो थे, वो एक समूह में इकट्ठा नहीं हो पाते थे क्योंकि उनके पास उनका कोई नेता नहीं था और उन्हें अक्सर डर रहता कि पुलिस उन्हें दंडित करके जेल भेज देगी और उनके ऊपर एक झूठा केस लगा देगी। सो दिस वाज द सीरीज ऑफ द इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। माय डियर स्टूडेंट्स, I hope you will try to do your best after repeating these questions and answer। और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक आपकी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर अगेन।